جو اس وقت آ رہی ہے وہ یہ کہ ایران کا ایک موقر ڈیلیگیشن، ایک اچھا بڑا ڈیلیگیشن پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا ہے، اور جب بات چیت میں آپ سے کر رہا ہوں بہت ممکن ہے کہ وہ پاکستان کے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچ چکا ہو۔ آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی، اور اس وقت میں آپ کے خدمت میں لائیو حاضر ہوں۔ بات کروں گا اسرائیل، فلسطین، ایران، امریکہ اور پورے مڈل ایسٹ کی صورتحال پہ، اور سب سے بڑی اہم خبر جو اس وقت آ رہی ہے وہ یہ کہ ایران کا ایک موقر ڈیلیگیشن، ایک اچھا بڑا ڈیلیگیشن پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا ہے، اور جب بات چیت میں آپ سے کر رہا ہوں بہت ممکن ہے کہ وہ پاکستان کے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچ چکا ہو، کیونکہ ایران سے پاکستان کی دوری بہت زیادہ نہیں ہے۔ ایک اچھا موقر ڈیلیگیشن وہ وہاں پہ روانہ ہوا ہے، اور اس میں دیکھیے کئی چیزیں اپڈیٹ ہو رہی ہیں، کئی اہم چیزیں اس میں ساتھ آ رہی ہیں، اور عمان کے ساتھ ساتھ روس اب اس بات چیت میں جو پیس ٹاک ہونی ہے وہ شامل ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جو اپڈیٹ ہے، یہاں پہ رپورٹس میں الجزیرہ کی جو رپورٹ ہے، الجزیرہ نے کیا کہا ہے وہ میں آج خدمت پیش کر رہا ہوں، اور کئی اپڈیٹس ہیں یہاں پہ دیکھیں۔ ہم نے ایک سینئر ایرانی ذرائع سے سنا، یعنی سورس جو ہے سنا ہے کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دورہ اسلام آباد پاکستانی فریق کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کرنا ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام آباد میں دوسرے مرحلے کی بات چیت ہونی تھی، پاکستان نے پوری تیاری کر لی تھی، اور یہاں تک کہ جو امریکی وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس وہ روانہ بھی ہو چکے تھے، لیکن اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ پھر انہیں واپس لوٹنا پڑا، اور ہنگامی وائٹ ہاؤس میں ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد معاملہ پھر کٹائی میں پڑ گیا، اور یہ 22 تاریخ کی بات ہے۔ آج جو ہے 24 تاریخ ہو گئی ہے، تو یہ اب پھر یہ سگبگاہٹ ہے، اور یہاں پہ دیکھیں کیا ہوگا، کیا اس میں روس سامنے آ رہا ہے، میں سب ڈیٹیل دے رہا ہوں۔ جہاں تک ہم سمجھتے ہیں ابھی تک امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی بات چیت کی منصوبہ بندی نہیں کی گئی ہے، ابھی کچھ بھی طے نہیں ہے، تو یہاں پہ اور نہ ہی ایسا کرنے کا کوئی ارادہ ہے جب تک کہ شرط پوری نہ ہو جائے، جو کہ امریکی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ ہے، یعنی اسٹریٹ آف ہورمز میں جو امریکہ کی ناکہ بندی ہے، جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتی ہے تب تک امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی اس پہ بات چیت نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو ڈیلیگیشن گیا ہے وہ کیا ہے، اس کے پیچھے کس طرح کا ڈسکشن ہوگا، کس طرح کی بات چیت ہوگی، اور یہ بہت ہی اہم فیصلہ ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب یہ چل رہا ہے کہ نہ جانے کب امریکہ ایران پر اٹیک کر دے، یہ ہر روز خبر آ رہی، ہر گھنٹے کہیں نہ کہیں اس طرح کی سگبگاہٹ جو ہے وہ سنائی دے جاتی ہے۔ اب ایسے میں ڈیلیگیشن کا وہاں پہ پہنچنا میں سمجھتا ہوں کہ معمولی بات نہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، لیکن یہ دورہ سید عباس عراقچی کے لیے علاقائی پیش رفت پر بات کرنے کا موقع ہو سکتا ہے، کہ جو علاقائی پیش رفت کیا ہے مڈل ایسٹ میں جو کچھ چل رہا ہے، چاہے سعودی عرب، یو اے ای، کیونکہ یو اے ای کا قرض پاکستان نے معاف کر دیا، مطلب ادا کر دیا، معاف نہیں کیا، پاکستان نے اپنا قرض آخری قسط جو یو اے ای کی تھی وہ چکا دی ہے، اور اس میں مدد کی ہے سعودی عرب میں۔ تو اب یہ پاکستان کی تو دیکھیے نکل پڑی، پاکستان کو کچھ بھی کہیے لیکن پاکستان نے اپنا الو تو فی الحال سیدھا کر لیا، یہ بالکل طے بات ہے، اور وہ ایک بڑے قرض سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ لیکن اس کے پیچھے ہے کیا؟ کیونکہ یو اے ای جس طرح سے اب امریکہ کو آنکھ دکھا رہا ہے، سعودی عرب جس طرح کی باتیں اب کر رہا ہے، اور ان سب کا جھکاؤ ترکی بھلے ہی کچھ نہ کرے لیکن بول رہا ہے، بہرحال بول رہا ہے، چلیے یہ بھی ایک اور جھکاؤ جو چائنا کی طرف ہے، تو کیا اس کے پیچھے کیا ہے ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھیں ہم سن رہے ہیں کہ روسی اس تعطل کو ختم کرنے کے لیے آئیڈیاز پیش کریں گے۔ اب اس بات چیت میں کیا روس بھی انوالو ہو جائے گا؟ بڑا دلچسپ ہو رہا ہے،
बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको आप मानिए, क्योंकि इसमें रूस का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसमें ओमान का भी इन्वॉल्वमेंट है। बहुत मुमकिन है कि इसमें टर्की भी हो और चीन भी इसमें कहीं ना कहीं उसकी शमूलियत नजर आ रही है। अब यहाँ देखिए आगे मैं और बढ़ता हूं, जो अल जजीरा ने लिखा है, ईरान और ओमान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात जंग के खात्मे के मुआहदे पर बातचीत के लिए भी साजगार हालात पैदा कर सकते हैं। अब ये उम्मीद है यहाँ पे ओमान जो है, जाहिर सी बात है कि वो भी चाहेगा कि ये बातचीत हो जाए। और जो ये खतरा, बड़ा खतरा मिडिल ईस्ट पे लाहक है जंग का। अच्छा देखिए, सिर्फ मिडिल ईस्ट की बात क्यों करें, पूरी दुनिया क्राइसिस में हो रही है। अगर ये आप स्टेट ऑफ होर्मुज, हालांकि अब खबर ये आई है कि स्टेट ऑफ होर्मुज को तमाम तजारती सरगर्मियों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन अमेरिका किस तरह से उसको हैंडल करेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ईरान बार बार ये कह रहा है कि देखिए स्टेट ऑफ होर्मुज हमारे कंट्रोल में है, नंबर एक। नंबर दो ये कि सिर्फ स्टेट ऑफ होर्मुज नहीं बल्कि बाबुल मंदब भी हमारे कंट्रोल में है। वहां रेड सी जहां पे अंसारुल्लाह अल हौती की कयादत वहां पे पैर जमाए बैठी हुई है, तो ये भी अपने आप में एक इत्तला है। तो ये इस दौरान आप देखिए मैं पूरी चीज यहाँ पे पेश कर रहा हूं। तो ईरान यहाँ पे हालात पैदा कर सकते हैं। और आगे क्या है, यहाँ पे देखिए रूस के लावरोफ और पाकिस्तानी हम मनसब के दरमियान मशरिक उस्ता मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हो सकता है, ये खबर है। मैं इसको भी आगे पढ़ देता हूं कि किस क्या ये है। रूस के लावरूफ और पाकिस्तानी हम मनसब के दरमियान मशरिक यानी मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हो रहा है। रूसी वजीर खारजा सरगई और उनके पाकिस्तानी हम मनसब यानी पाकिस्तान के वजीर खारजा विदेश मंत्री इसहाक डार ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। इन दोनों के बीच में बातचीत इसको लेकर के हुई है। और आपको मैं बता दूं, पहले भी आपको इत्तला होगी कि जो रूस है उसने ये पेशकदमी की थी और कहा था कि मैं सालिस बनने के लिए तैयार हूं, मैं जो पीस टॉक है इस पे ये बातचीत के लिए कि इनकी बातचीत हो जाए, मैं उसके लिए तैयार हूं। हालांकि कई बार बड़ा अटपटा सा लगता है वो रूस जो यूक्रेन के साथ जंग कर रहा है, जो यूक्रेन और उसमें ठनी पड़ी हुई है, 4 साल का अरसा हो गया, वो यहाँ पे कैसे समझौता कराएगा? तो क्या ये समझौता पर यूक्रेन को लेकर के भी होगा? इतने पूरा मतलब बड़ा अजीब सा हो जाता। अब यहाँ देखिए आज इनका ये फोन कॉल ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची के दोनों ममालिक के दौरे से पहले हुआ था। ये पहले की बात है। एक बयान में रूस की वजारत खारजा ने यानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि लावरोफ ने ईरान और अमेरिका के दरमियान देरपा समझौतों तक पहुंचने की कोशिशों में इस्लामाबाद के सालसी यानी मीडिएटर के किरदार की तारीफ की और इन कोशिशों की हिमायत के लिए मास्को की तैयारी की तस्दीक की है। तो ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम खबर है। और सबका ये और वो डेलीगेशन जो पाकिस्तान के लिए रवाना भी हो गया, हो सकता है वो इस्लामाबाद पहुंच गया हो। मैं जैसे ही अल जजीरा या दूसरे सोर्सेज से यहाँ पे हम तक इत्तला पहुंचेगी, फौरन हम आपको उसकी इत्तला यहाँ पे देंगे। यहाँ पे देखिए वॉच ईरानियन स्प्रिंग म्यूजिक टू साइट्स, यहाँ पे आप देखिए डिवास्टेटेड बाय यूएस इजराइल अटैक। तो ये खबरें देखिए यहाँ पे आने लगी हैं। और जैसा मैंने कहा कि इसके सिलसिले में जैसे ही कोई भी यहाँ पे इत्तला होगी उसकी फौरन मैं आपको इत्तला दे दूंगा। फिलहाल जो है वहां पे अभी खबर नहीं है कि वहां पे क्या सूरत हाल है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए, मैं उनको इन करा लेता हूं और उसके बाद मैं आगे की बातचीत करूंगा। कई और अपडेट्स हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो डेलीगेशन के पहुंचने की। हालांकि फिर मैं क्लियर कर दूं कि डेलीगेशन जरूर पहुंच रहा है, लेकिन अभी अमेरिका और ईरान में कोई बातचीत होगी, क्या होगा अभी कुछ भी तय नहीं है, क्योंकि ईरान की शर्त यह है कि अमेरिका ने जो नाकाबंदी स्टेट ऑफ होर्मुज में कर रखी है
वो उस नाकाबंदी को वो हटाए। जब तक वो उसको नहीं हटा लेता, आगे की बातचीत नहीं होगी। तो क्या ये बातचीत के क्या फिर मानी है, क्या मतलब है, इन सब चीज को हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे, अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। तो ये है। और एक चीज और जो अभी मैंने पूरी स्टोरी बनाई है, वो आप जरूर जाके देखिएगा कि जो बात 1.5-2 साल पहले आई थी कि इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को कैंसर हुआ है, अब उसकी तस्दीक उन्होंने खुद कर दी है। लेकिन ये तस्दीक इस हाल में की है कि गोया उन्होंने कैंसर को हरा दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले अब बेहतर है, लेकिन अलग अलग दावे हैं। बहरहाल चलिए इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए खास मेहमान अब्दुल वाहिद साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलम निगार है, मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नजर रखते हैं, कई जबानों में आप कॉलम लिखते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और आप सब उनके तज्जिए को सुनते रहते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी स्टडी करते हैं, अच्छा एनालिसिस है। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मैं सबसे पहले अब्दुल वाहिद साहब, क्या अपडेट लेकर के आए हैं, किस तरह का अपडेट डेलीगेशन वहां पे पहुंच रहा है, क्या उम्मीद आप करते हैं, किस तरह की चीजें? जी अब्दुल वाहिद साहब। मुमताज भाई, जैसा कि न्यूज़ में था और कई रोज से डिस्कशन में था कि जो है ईरान के वज़ीर ख़ारिजा या डेलीगेशन की इस्लामाबाद में बातचीत होगी, तो वो जो है कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं है। ये कई रोज से जो है इस तरह की बातें थीं न्यूज़ वगैरह में कि भाई जुमे को गालिबन कोई बातचीत हो सकती है इस्लामाबाद के अंदर। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जो है इस्लामाबाद जा रहे हैं और कल जो है गालिबन विटकॉफ और जैड कुशनेर ये भी इस्लामाबाद में होंगे और ये तीनों जो है अफराद वहाँ पे बैठेंगे। देखिए क्या बातचीत होती है। और उसके बाद जो है उनका प्रोग्राम जो है मास्को जाने का भी है। तो वो जो है सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं आ रहे हैं, उनका मास्को भी है और मस्कत यानी ओमान की जो राजधानी है वहाँ भी वो जा रहे हैं। तो ये जो है 3 मुल्कों का दौरा है अब्बास अराग़ची का, सिर्फ इस्लामाबाद की स्टैंड एलोन विजिट नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरे ये है कि जैसा कई बार बातचीत आई है, खबरों में आई है, क्या जो है सिर्फ पाकिस्तान के कहने से ईरान बातचीत के उसमें शामिल हो जाएगा? क्या उसको गारंटर नहीं चाहिए? पहले भी उसको किस तरह से चीट किया गया है? तो इन सारे मामलात को देखते हुए उनका मास्को जाना, उसके बाद जो है जिस तरह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की ईरान के सफ़ीर के अलावा इस्लामाबाद के अंदर जो बीजिंग के हैं यानी चीन के सफ़ीर, उनके साथ भी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उसके अलावा रशिया वगैरह इन सबसे बातचीत हो रही है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि रशिया जो है इन्वॉल्व है यूक्रेन के अंदर, वो सब है, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ से वो लोग ईरान को मदद पहुँचा रहे हैं और ये मदद पहुँचनी ही है, क्योंकि ईरान के कोलैप्स का मतलब यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर चीन और रूस के लिए बिल्कुल जो है कोई भी जगह बचेगी नहीं, उनके सारे किले मुनहदिम हो जाएंगे। आखिरी किला ईरान बचा है। उनकी जो है सर्द महरी थी कि इराक चला गया, सीरिया वगैरह चले गए और भी बहुत सारे ममालिक, लीबिया वगैरह कोलैप्स हो गए। तो इस वक्त जो है वो ईरान पर जो है ख़तरा मोल लेना नहीं चाहेंगे, चाहे रूस हो चाहे चीन हो। तो दूसरा ये है, अभी एक और डेवलपमेंट आई है। डेवलपमेंट ये है कि ईरान के गवर्नमेंट का ये बयान आया है कि जो 2 जहाज़ पकड़े हैं चीन से आ रहे थे, वो अमेरिका ने 2-3 रोज़ पहले वो जो है जहाज़, उसमें जो है डायलिसिस और बहुत सारी मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिसिन जो ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रूरी हैं, उस तरह की भी मेडिसिन वगैरह थी उनमें, जिनको जो है अमेरिका ने पकड़ा है। तो एक तरह से अमेरिका फिर एक्सपोज हुआ है जब वो बोल रहा था कि हमने हथियार पकड़े, ये सब पकड़े। उनके अंदर हथियार नहीं थे, बल्कि ज़िंदगी जो है लाइफ सेविंग मेडिसिन थी, जिनको रोकना सरीह खिलाफ वर्जी है। लेकिन अब चूंकि कोई मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के किसी कानून को नहीं मानता, किसी ज़ाब्ते को नहीं मानता, सबकी धज्जियां उड़ाए हुए है, यूनिलेटरली बहुत सारे काम कर रहा है। 180 बच्चों का कातिल है सिर्फ ईरान में। फ़लस्तीन के अंदर 1.5 से 2 लाख फ़लस्तीनियों का कातिल है। पूरी इंसानियत का जब से अमेरिका की खोज हुई है गलती से, तब से लेकर आज तक कई लाख लोग, 5 लाख बच्चे मेडिसिन न होने की वजह से इराक के अंदर मर गए थे, अमेरिका के मुसल्लत करदा पाबंदियों के उसमें।
ये बात बाद में होगी, सद्दाम कौन था, कैसा था, उस शासक पे बात करे, सबको आज़ादी है, लेकिन जो बच्चे अमेरिकी पाबंदियों से मारे गए उनका जवाब तो अमेरिका से ही लिया जाएगा। तो ये जो है ये सब बातें अपनी जगह हैं। उसके अलावा ये सब जो कुछ हो रहा है, ईरान के अंदर जो कुछ रिपोर्ट्स आई कि वो जो मिनाब स्कूल है, सबसे पहले उन्होंने छोटा बम मारा, उसके बाद सारे बच्चे प्रेयर हॉल में आ गए, उसके बाद उन्होंने फिर रैम्पेंट बम्बारमेंट किया, यानी टारगेटेड अटैक के बच्चों को मारना ही मारना है। तो ये जो है इनका पूरे का पूरा ये जो एपिस्टेन गैंग है, ये पूरा जो है एलिमिनाती का ये जो गैंग है ये, तो ये पूरा जो है ये सारे के सारे जो है जितने जो है शैतान नफ्स लोग हैं, ये सारे के सारे उनका गैंग है ये, और ये सारे लोग अमेरिका और इसराइल के बैनर तले हैं। और जो बात आपने बताई अभी, वो बहुत पहले से खबरों में थी कि नेतन्याहू को कैंसर है, नेतन्याहू इलाज के लिए गया होगा। अब जो कुछ भी है, ये यहूदी वो कौम है जिन्होंने एरियल शेरोन 8 साल तक कोमा में रहा और उसको छुपाए रखा इन्होंने, 1-2 साल नहीं 8 साल, और उसकी डेथ जो है डिक्लेयर हो गई थी, उसको डिक्लेयर करने में इन्होंने 3-4 साल लगा दिए कि वो ब्रेन डेड है। तो ये लोग इस तरह के हैं, इनके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, ये चीज़ों को छुपाते हैं। तो ये जो है इनकी पूरी सरिश्त है। इस वक्त जो कुछ इस्लामाबाद से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जा रहे हैं, ईरान फिर दुनिया को दिखा रहा है कि हम सिफारतकारी में मुकम्मल यकीन रखते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिका ने हमारे जहाज सीज कर लिए जिन पर लाइफ सेविंग मेडिसिन थी, कोई हथियार नहीं थे। तो ये सब जो है ईरान दुनिया को दिखा रहा है कि अमेरिका का एटीट्यूड क्या है, वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं और क्या रवैया है उनका दुनिया के सामने। तो ये जो है अगर उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है अभी भी अमेरिका और इसराइल की मदह सराई कर रहे हैं, तो अपने गिरबान में झांकें कि उनको रात में नींद कैसे आती है। जी मुमताज भाई।